ਨਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਟ GPT ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ ਚੈਟ GPT ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਟ GPT ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ एबिलिटी है? और वो आपको बाकायदा वो एक पुख्ता ऐसे वो लिख के दे रहा है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपको गाना चाहिए वो गाने भी लिख के दे रहा है। तो आपको पोइट्री भी लिख सकता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारे इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेता है। तो इसीलिए उसको वो सब नए स्कॉलरशिप क्या आ रहा है, नए पेपर्स क्या हैं, उसको सब मालूम होता है। तो वो उन सबको इन्फॉर्मेशन को मिला करके आपको एक बिल्कुल नया ऐसे आपको दे रहा है। अच्छा, प्यार तो इलावा भी मैं देख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ਸ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੱਟੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਣ, ਬੀਅਰ ਪੀਣ, ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੌਜ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ। The Harjinder Thin Show। ਨਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਟ GPT ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਨੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਮਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ ਚੈਟ GPT ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਕਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਮਨੀ ਮੁਕਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, PhD ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PhD ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਚੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਚੈਟ GPT ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਟ GPT ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? जी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है और ये एक बॉट है जिसमें आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं चैट के ज़रिए कि मुझे इस टॉपिक पे एक ऐसे लिखना है। और वो आपको बाकायदा वो एक पुख्ता ऐसे वो लिख के दे रहा है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपको गाना चाहिए वो गाने भी लिख के दे रहा है, तो आपको पोइट्री भी लिख सकता है। तो ऐसे बहुत से इसकी काबिलियत है, खूबियाँ हैं जो अब धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है। ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस नवंबर 2022 में इसका लॉन्च हुआ और इस पे अभी भी काम हो रहा है। तो अगले वर्जन शायद इससे भी ज़्यादा पुख्ता हो, उनमें ज़्यादा काबिलियत हो, ऐसा माना जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए और मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ास करके जो अखबार निकाल रहे हैं या डिजिटल जर्नलिज्म में वेबसाइट्स वो चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर में कॉपी करना, चीटिंग करना, प्लेजराइज करना, ये बहुत पुरानी बात है। और हर दौर में इस पे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक तो पहले हो रहा था कि प्लेजरिज्म, कि आपने 10 किताबें पढ़ी और जाके वहाँ से लफ्ज़ बा लफ्ज़ आपने कॉपी करके अपने एसे में डाल दिया। तो इसको पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर निकाले गए, वो भी AI पावर्ड। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है अमेरिका बेस्ड, टर्निटिन करके। तो ये दुनिया भर के एकेडमिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ सब्सक्राइब करते हैं सर्विस को। तो ये एक दफ़ा आपको शक हुआ कि जो मेरा स्टूडेंट है इसने इतना बढ़िया ऐसे कैसे लिख दिया, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, और इसका जो पहले का काम है वो इतना पुख्ता नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। नवंबर तो बाद अचानक स्कॉलर बन गया। जी, तो हाँ, तो वो जब होने लगा तो प्रोफेसर्स फिर ऐसे को अपलोड कर देते थे टर्निटिन में, अभी तक वैसे ही हो रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर फिर दिखा देगा कि कितना परसेंटेज कॉपी हुआ है, कौन से वो लाइंस हैं और कौन सी किताबें हैं जहाँ से ये चुराई गई हैं। तो टर्निटिन सॉफ्टवेयर आपको बता रहा था, लेकिन अब चैट GPT की वजह से क्या हुआ है कि अब ये कॉपी नहीं कर रहा है, ये नया ऐसे लिख रहा है आपके लिए, जिसमें उसने सारा स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है, जो पब्लिक डोमेन में है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो इसके अंदर फीड है। और AI वैसे ही फंक्शन करता है कि वो जितना भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जी, तो जो लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं इसको, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारे इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर लेता है। तो इसीलिए उसको वो सब नए स्कॉलरशिप क्या आ रहा है, नए पेपर्स क्या हैं, उसको सब मालूम होता है। तो वो उन सबको इन्फॉर्मेशन को मिला करके आपको एक बिल्कुल नया ऐसे आपको दे रहा है। सो अगर आप टर्निटिन के भीतर उसको डालते हैं तो नहीं पकड़ पाता है। अच्छा, क्योंकि टर्निटिन तभी पकड़ पाएगा अगर कहीं से चुराया हो। ये तो नया ऐसे लिखा है, ये पहले कहीं किसी ने लिखा नहीं है, तो अब आप इसको कैसे पकड़ेंगे? अब हाल ही में टर्निटिन ने बोला है कि हम इस पे काम करेंगे, अब इसमें नए फीचर्स हम डालेंगे जिससे जो है ये चैट GPT का काम ये पकड़ पाएगा। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे करिश्मे ने? जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में काम कर दिया। अब एक बहुत अगर सिंपल सा अगर हम एग्जांपल दें, आप जब आजकल गूगल में जाके जीमेल आप खोलते हैं, आप ईमेल टाइप करना शुरू करते हैं, हेलो XYZ लिखा है, उसके बाद वो आपका प्रॉम्प्ट आ जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि गुड मॉर्निंग टू यू, है ना? तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, आई रोट टू यू, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट देगा लास्ट वीक दैट आई वांट समथिंग। वो प्रेडिक्टिव वो जो टेक्स्ट होता है, तो वो और वो कैसे काम करते हैं ये लोग, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पूरी टेक्नोलॉजी है कि ये
इम्प्रूव करता रहता है कि आपने सपोज जिसने उसने प्रॉम्प्ट दिया उसको आपने नकार दिया कि मुझे ये नहीं लिखना था, मुझे दूसरा लाइन लिखना है, वो दूसरा लाइन उसने पढ़ लिया है, तो अब अगली दफ़ा वो आपको वो दूसरा लाइन दिखाएगा कि क्या आप ये लिखना चाहते हैं। आप मोबाइल पे आप टाइप कर रहे हैं कुछ, वहाँ पे भी प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आ रहा है। आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हैं, फिर आपने देखा कि आपके इंस्टाग्राम फीड में भी वैसे सिमिलर वीडियोस आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने फेसबुक पे रेड एफएम वैंकूवर का वीडियो देखा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो अब मेरी मिसेस के फेसबुक फीड में भी रेड एफएम के वीडियोस आ रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी रेड एफएम को विजिट नहीं किया पेज, है ना। तो ऐसे ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट करता है कि ये नई मालूमात ये हासिल करता रहता है और इम्प्रूव करता रहता है खुद को। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਅਲੈਕਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। वो जवाब दे देता है। अभी तक इसके कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं कि उसको कुछ सिचुएशंस में ही आपको वो जवाब दे सकता है। और जब आप उसमें नई इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो फिर उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी। अभी आप एलेक्सा को बोलते कि लाइट बत्ती बुझा दो, है ना, बत्ती बुझा देगा घर का सब कुछ। आप बोलते हैं कि सिरी मुझे गूगल देखना है, तो सिरी गूगल का पेज आपके फ़ोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे वो दिखा देगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ आप और भी सवाल करेंगे तो उसके जवाब वो नहीं दे पाता है। तो कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं या कुछ जनरलाइज्ड कुछ होते हैं उसमें। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰੀ ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ जी। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਰੀ ਅਲੈਕਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। हाँ हाँ, और लोग करते ही हैं। हमारे और मशीन्स में ये फ़र्क है कि अब ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा एक्सपर्ट्स पूछते रहते हैं, या ये पूरे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये सवाल पूछा जाता है और सदियों से, आज अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से इसका जो है इसकी बात हो रही है कि क्या कंप्यूटर्स या मशीन इंसान की तरह प्यार मोहब्बत कर सकेगा कभी। तो ये सवाल पूछा जाता है। अब अभी तक वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि प्यार मोहब्बत होने के लिए एक बॉडी चाहिए होगा, जिस आपको हार्मोन्स चाहिए होंगे, तभी जाके वो एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इंसान में तो वो है, और इंसान और मशीन के बीच में ऐसे कभी कभी कनेक्शंस बन जाते हैं। अभी एक हाल ही में ओहायो में एक साहब हैं, उनकी शादी जो है टूट रही थी, तो उन्होंने जाके ऐसे एक एआई बॉट से जो है वो चैट करने लगे, और उनको लगा कि जो है एआई बॉट शायद मेरी भावनाओं को समझता है, तो उस हिसाब से प्यार हो गया उसका। हाँ, उनको प्यार हो गया। और उस वजह से क्या हुआ, अभी भी वो रियलिटी में ही है, लेकिन कि उनकी शादी जो है वो बच गई, जो टूटने वाली थी। उनको लगा कि शायद वो जितना वक्त उस एआई सॉफ्टवेयर के साथ बिता रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, वो शायद उनको अपनी बेगम से करना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा उस पर उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया और उनकी शादी बच गई, और न्यूज़ में आया था अभी कुछ टाइम पहले। तो ऐसे भी वाकयात हुए हैं। लेकिन ये सोच बहुत पहले से है कि इंसान का किसी मशीन के साथ प्यार हो जाना और अपनापन महसूस करना इंसान का, मशीन में अभी तक वो काबिलियत नहीं है। एक मूवी आई थी कुछ साल पहले करके, तो उसमें क्या होता है, वाकिम फिनिक्स हैं और साइंस फिक्शन दी फिल्म हाँ, सी, स्कारलेट योहानसन एक कंप्यूटर का रोल कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनको जो है, जो उनके ओनर है ये वाकिम फिनिक्स, उनके साथ उनका इश्क हो जाता है। इससे क्या होता है वो मैं कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत दिलचस्प है। तो ये सोच है साइंस फिक्शन में, फैंटेसी फिक्शन में। ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ਸ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ, ਫੱਟੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਣ, ਬੀਅਰ ਪੀਣ, ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੌਜ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ।
सर देखिए, ये तो एथिकल डिबेट और ये लेबर डिबेट तो बहुत टाइम से चल रहा है कि रोबोट्स या ऑटोमेशन की वजह से जो है आपकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो गई है। अब बहुत से काम जैसे मेरे बाप दादा को करना पड़ता था, मुझे नहीं करना पड़ता। पानी तक मुझे नहीं गर्म करना पड़ता है ना। तो ये ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन साथ ही साथ ये शुबा भी हो रहा है लोगों को, और ये एकदम वैलिड पॉइंट है कि ऑटोमेशन की वजह से आपका काम और आपके जो लोग हैं, बेरोजगारी हो जाएगी। हाँ, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि अगर मीडिया इंडस्ट्री में, चलिए मैं अखबार में मैंने काम किया, इसमें उसका जी। एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक टीम में 14 लोग हैं जो अखबार के पन्ने वो बनाते हैं। अब एक ऐसा AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर आ गया, और ये पॉसिबल है क्योंकि आप आजकल आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं, टेक्स्ट डाला, फोटो डाला, तो राइट में साइड बार में डिज़ाइन आइडियाज़ आने लगते हैं कि आपको इस तरह से स्लाइड बनाना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो वही काम अगर एक दूसरा सॉफ्टवेयर अखबार के पन्ने बनाने में काम करे, तो जो अभी 14 लोग बना रहे हैं, एक आदमी कर तो देगा। एक आदमी कर देगा वो। और क्योंकि डिजिटल में तो ऑलरेडी सिमिलर चीज़ें हो रही हैं कि प्रिडिक्टिव न्यूज़, कोई आप एक न्यूज़ आपने डाल दिया, फ्लैश आ गया, AI ने वो पढ़ लिया, और जो रिलेटेड ऐसे न्यूज़ आइटम्स हैं दुनिया भर के, उसने आपके होम पेज पे दिखाना शुरू कर लिखने दिया। में GPT लिख देगा। हाँ, और GPT में हुआ है, ऐसे जर्नलिस्टों ने कोशिश की थी कि देखा जाए कि इसका काम कितना पुख्ता है। तो एक शायद गार्डियन का आर्टिकल है या किसी और न्यूज़पेपर का, उन लोगों ने इस पे एक पूरा आर्टिकल लिखा, और आखिर में उन लोगों ने लिख दिया ये आर्टिकल भी इस सॉफ्टवेयर ने लिखा है। तो ये टेस्ट केस था, लेकिन ये बताने के लिए कि शायद आने वाले वक्त में इस ऑटोमेशन की वजह से, या फिर जो ये AI ऑटोमेशन से भी नेक्स्ट लेवल का है, तो इस वजह से शायद आपके पास नौकरियां ना रहे, तो फिर वो आप बीच पे तो बैठ जाएंगे, लेकिन बियर पीने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए जो है, अब जो लोग काम कर रहे हैं इन सब इंडस्ट्री में, वो कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना पड़ेगा, या नया रोजगार उनको ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर वो इंतशार फैलाएंगे और सरकारों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और वो सारे उस बिजनेस में शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो अब सोशलिज्म आएगा उसमें। सोशलिस्ट तो ये सोचते रहते हैं, ऐसे हैं भी एग्जांपल्स, लेकिन आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क में देखिए, कनाडा में हालांकि 3.8 मिलियन का जो पॉपुलेशन है, 38 मिलियन का पॉपुलेशन है कनाडा का। हिंदुस्तान का आप देखिए अब ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन होने जा रहा है। वहाँ कितने ऐसे कंपनीज आपको मिलेंगे जहाँ पे जो मुलाजिम हैं उनको भी स्टॉक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं, वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चुनिंदा लोग ही हैं जिनके पास स्टॉक ऑप्शंस हैं, बाकी लोग जो हैं वो मुलाजिम हैं, कभी भी फायर हो जाएंगे। तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में इस पे बहुत बातें होंगी। एथिकल डिबेट ज़्यादा है। जी, एथिकल डिबेट तो है, और यूनिवर्सिटीज़ में भी अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को नकारें नहीं, इसको अपनाएं, कुछ इस तरह से अपनाएं कि ये जो है अनएथिकल ना रहें, कि इसके वजह आप स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दें कि आप पहले इसमें लिखें और आप देखें कि ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा ऐसे दे रहा है, और आप खुद कोशिश करें उस लेवल का आप काम करने के लिए। गोइंग बैक टू चैट GPT मनी जी, ਹੁਣ मेरा ख्याल है कुछ यूनिवर्सिटियां इनू नकल समझण लगियां, कहंदे चीटिंग है, प्लेजरिज्म है। जी जी, अभी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने, 8 सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने, उन लोगों ने तय किया है कि अब वो नए मैकेनिज्म्स लेके आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि ऑनलाइन में आप लेके गए अपना काम, एग्ज़ाम के टाइम पे आपने ऑनलाइन जाके ही आपने, और ख़ास करके कोविड के टाइम में लोग अपने घर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा उनको अब्यूज़ का पोटेंशियल दिखा, और हुआ भी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए, और नवंबर 2022 के बाद ख़ास करके। तो अब वो सोच रहे हैं कि शायद पेन एंड पेपर एग्ज़ाम्स वापस लागू किया जाए क्लासरूम में अंडर सुपरविजन। वो एक सोच रहे हैं। ब्रिटेन में भी उन लोगों ने कहा है कि अब इस फॉर्म को शायद हमें एज अ चैलेंज लेना चाहिए। न्यूयॉर्क एरिया में सारे पब्लिक स्कूल्स ने अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते ही, उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब चैट GPT किसी भी डिवाइस में आप ला नहीं सकते। और अगर आप डिवाइस यूज़ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। वो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ का ये सोचना है, क्योंकि अब ये बहुत सीरियस चैलेंज है कि इससे जो है, क्या आप अच्छे से अपनी तालीम हासिल कर पाएंगे?
जब आप कोई सॉफ्टवेयर आपके सारे एसेज लिख रहा है कि आप पढ़ भी रहे हैं, तो उस डिग्री के साथ फिर आप बाहर जाके क्या करेंगे? डिग्री लेके भी हो अनपढ़ रह जाएंगे। जी, वो होगा। और इसीलिए ये एथिकल डिबेट चल रहा है कि इसको प्लेजरिज्म की तरह देखा जाए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बोल दिया है कि होगा, हम ऐसे प्लेजरिज्म इसको मानेंगे। बाकियों ने बोल दिया है कि शायद इसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि स्टूडेंट्स ये समझ पाए कि उनको किस लेवल का ऐसे लिखना है, किस तरह का लिखना है। शायद प्रोफेसर्स भी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें दिखाने के लिए कि कैसे एक बेहतर ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि बरतानिया में एक प्रोफेसर ने इसको टेस्ट किया था पिछले साल के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डाल के, तो उन्होंने पाया कि जो उनके स्टूडेंट्स ने लिखा था उससे काफ़ी बेहतर, काफ़ी पुख्ता ऐसे चैट जीपीटी ने लिख दिया। जी। तो और शायद आराम से B+ या A- का ग्रेड आपको मिल जाएगा वैसे अगर आप लिख रहे हैं। पर तवज्जो की बात ये हुई कि जो प्रोफेसर मार्क करते हैं वो भी चैट जीपीटी ही बरतते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं और ये एक पॉइंट बोला गया है कि क्यों ना इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि ग्रेडिंग का काम चैट जीपीटी या ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किया जाए, जिससे जो है प्रोफेसर्स का लोड कम हो जाए। तो एक किस्म का आप अभी कह रहे हैं ना कि एक पराया टेक्नोलॉजी टाइप का हो गया है कि अच्छा हम तो बड़े पुख्ता हैं, हमने अपनी पढ़ाई जो है किताबें पढ़ के की, तुम इसको कैसे बिना कोई मेहनत किए तुम कैसे इसमें लिख दोगे। तो ये एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है। पहले हम ये नहीं, जब कैलकुलेटर्स आए तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बहुत पहले से शायद एग्जाम में लेके जा नहीं सकते। हाँ, हिंदुस्तान में तो नहीं जाके और कैलकुलेटर आने से जो है, जो ओल्ड स्कूल का जो थिंकिंग था उसके मुताबिक आप अपने दिमाग पे आप लोड नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आप जो है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर्स तो काफ़ी टाइम से हमारे पास है। सेम चीज़ कंप्यूटर्स के आने पर भी बोला गया था, लेकिन अब वो ज़िंदगी का अब हिस्सा बन गया है। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम आप लिख पाएंगे आज, लेकिन वो रियलिटी है। तो इस टेक्नोलॉजी को बजाय इसके कि वो आपका दुश्मन बने, उसको अपना के कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म आपको तैयार करना चाहिए, हाँ, कि हर कोई इससे बेनिफिट करे। नहीं तो पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप वाकिफ़ होंगे, जिससे जो है एक इंसान का पूरा हुलिया आप कॉपी करके, उसकी आवाज़ कॉपी करके आप पूरा वीडियो बना सकते हैं। टॉम क्रूज का एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले जो बहुत मशहूर हुआ था। तो ये एक अब्यूज़ की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को आपको फंसाना है, आपने AI के ज़रिए उनका पूरा एक वीडियो बना दिया और वो आप जितना भी क्लैरिफाई करेंगे, एक दफ़ा वायरल हो गया, उसके बाद फिर डैमेज हो चुका होगा। तो ये एक पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए ज़रूर, लेकिन इससे डरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो फिर शायद वो मैकेनिज्म्स आप तैयार कर पाएंगे इससे बचने के लिए। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।